ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। देखो मैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੀਸਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਰਕ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚੁਣਨਗੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਲਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੈਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ? ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਗੈਟ ਫਾਰਮਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ। हम कभी गल के हाथ लगाए नहीं गए। हमारे छोटे बच्चे की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में 2 बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी आलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ, हमको टेबल और आलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम से, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां खुद लेके गई थी? खुद लड़कियां थी साथ में। पर एक वीडियो आई जिसमें आपने भी देखा होगा, उस वीडियो में आई है, उस कमरे में पहले हमारी चीफ वार्डन गई हैं, जिसको उसका पीछे फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। पहले हमारी लड़कियां गई, हमारी जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया हूँ। पर आपको लगता है कि ये मसला बनाया क्यों जा रहा है? फिर आप जब कह रहे हैं कि वार्डन गई थी, उसके इसमें जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों के कमरों में कोई गए नहीं थे। लड़के क्यों इस पर प्रॉब्लम कर रहे हैं? लड़कों की जो प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। आपका बार-बार इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपने उस दिन भी रात को जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और उसके बाद में अगले दिन भी आप उनसे
से बात करने के लिए? हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा। हमारे थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं। ये हमारे तीसरी पीढ़ी, अगर कोई टीचर, महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चों के साथ जो आरोप लगाया है, ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं, या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं। ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। सर लगता है कि टाइमिंग को लेकर कुछ इशू था, जो टाइमिंग की कटौती हुई है? टाइमिंग के इशू को लेकर के नहीं, इनको हर हफ्ते में 2 बार, हर सैटरडे संडे, कुछ हर सेकंड सैटरडे को और फोर्थ सैटरडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहती है। कोई भी बच्चा जा सकता है और 4 बजे तक हमारे क्लासेज चलते हैं। क्लासेज के बाद कोई भी बच्चा जा सकता है, हम क्लासेज के बाद कोई रोक नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ से जाना, आपका हॉस्टल में एंटर करना क्या सही था? आपने ये चीज देखी, क्योंकि आप माफी भी मांग रहे हैं। यह लड़कियों का, मैं उन्हीं कमरों में गया जो हमारी बच्चियां सिंगल ऑक्यूपेंसी के कमरे में डबल ऑक्यूपेंसी में रह रही हैं। और मैं चीफ वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और महिला लड़कियों, जो गर्ल्स लड़कियां, उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया हूँ 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ। और सब लड़कियां साथ ही, पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना, अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी, कमरों में गए, और यह कोई अपराध नहीं। प्रोटेस्ट के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मंशा रह रही है? क्या कोई पीछे से चला रहा है इस प्रोटेस्ट को? कोई अब यह हमारे पास तरह का कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम, अगर जो भी होगी, हम अपने महिला टीचरों के साथ मिलकर, अपने बच्चियों के साथ मिलकर के, उसको गर्ल्स के साथ मिलकर के रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक कमेटी भी बनी है, कमेटी में कई मेंबर थे, उसमें से 3 कमेटी के मेंबर। हाँ, रुक जा, कल हमने 5 बजे जो है हमारे यहाँ टीचर बैठे थे, और कुछ लड़कों ने कहा कि आइए हम रिक्वेस्ट कर मिल लेते हैं। 9 मेंबर की कमेटी है, एक उसमें चंडीगढ़ के थे, एक और कोई प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते हैं। हमने कहा शेष टीचर जा करके बात करें, और 100 टीचरों ने बात किया। वो उनको जो भी वेलकम है, आज की यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम उनके साथ बात करेंगे। इस तरह की कोई बात, हमारा पूरे टीचर कम्युनिटी के ऊपर हमारा विश्वास है, हम सब टीचरों पर विश्वास करते हैं और हम लोग सामूहिक रूप से काम। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। हमारे वीसी ने बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे डेरोगेटरी कमेंट्स बोले हैं और इंसेंसिटिव कमेंट्स दिए हैं। अभी लेटेस्ट जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ है, उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए लड़कियों का इंस्पेक्शन करने गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने लड़कियों को टाइम भी नहीं दिया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगे उनके रूम जाके, जबकि लड़कियों ने क्लियरली कहा था सर हमें एटलीस्ट गिव सम टाइम। उसके बाद उन्होंने उनके कपड़ों पे भी कमेंट किया। एंड फॉर एनी इंडिविजुअल लिविंग इन दिस कंट्री, अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में रह रहा है, अब जाके उसको ये नहीं पूछोगे वो कॉलेज का लेक्चर नहीं अटेंड करी थी, वो अपने रूम में थी। एंड दैट इज़ वाई इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है अपने वीसी से। उनके कमेंट्स ऐसे भी हैं कि कोई बच्चा अगर यहाँ पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ने के लिए, तो उनको डेरोगेटरी कमेंट्स बोलते हैं, और इसी वजह से 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज के दिन भी यही हर एक कोशिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अभी इन्होंने, जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें पता चली है कि इन्होंने ट्रेड यूनियन के अभी हेड आए हुए थे, उन्होंने हमें यहाँ के बोला है कि कोई भी आके आपको यहाँ पे टेंट लगाने के लिए इजाज़त नहीं देगा। हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जितने भी टेंट्स हैं मना कर दिए जाएंगे यहाँ पे। अभी भी हमें थ्रेटन किया जा रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।